প্রকৃতি, যাকে সকল মানুষের জীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি এর মধ্যে ভারসাম্য থাকে তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, অমৃতকালের সংজ্ঞা বাস্তবে বাস্তবায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই চিন্তাভাবনাকে সম্ভব করার জন্য গত 11 বছরে অনেক প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কনফারেন্স অফ পার্টিজ, নীতি উদ্ভাবন এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারত আজ বিশ্ব জলবায়ু নেতার ভূমিকায়। 2015 সালের COP21-এ ভারত 2030 সালের মধ্যে নিজের ঊর্জা ক্ষমতা অজীবাশ্ম উৎস থেকে তার শক্তি ক্ষমতার 40% অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, যা সময়ের আগেই অর্জন করা হয়েছিল। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। 2021 সালে COP26-এ ভারত জীবন অর্থাৎ পরিবেশের জন্য জীবনধারা এবং পঞ্চামৃতর মতো ধারণা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে জলবায়ু নীতির একটি নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছে। একই সাথে COP29-এ অক্ষয় ঊর্জা এবং জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছিল। ভারত লক্ষ্য অর্জন করেছে COP21 নির্ধারিত সময়ের 9 বছর আগে। जो हमारे एनर्जी के सोर्स हैं उनको पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के सोर्स की तरह से बदलने का काम जारी है। 2030 तक जो हमारे लक्ष्य हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो बढ़ोतरी सराहनीय है। ज़रूरत से जितना हमारा प्रोजेक्ट था उससे ज़्यादा जो 2030 का प्रोजेक्ट था उसके लगभग पास हम पहुंच चुके हैं या उससे ज़्यादा भी कर चुके हैं कुछ क्षेत्रों में। গ্রিন এনার্জির সম্প্রসারণ। আজ ভারত অক্ষয় ঊর্জা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে রয়েছে। গত 1 বছরে প্রায় 29.52 গিগাওয়াট ক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে এবং মোট অজীবাশ্ম শক্তি উৎপাদন 223.6 গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। সৌরশক্তি 107.9 গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। শুল্ক খরচ 65% বেশি হ্রাস পেয়েছে। বায়ুশক্তি 51 গিগাওয়াট ছাড়িয়ে গিয়েছে। পারমাণবিক শক্তির উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। 2047 সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা 100 গিগাওয়াট নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতের পরিকল্পনা কেবল শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, 105টি দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন পর্যন্ত ভারত প্রতিটি পদক্ষেপে পরিবর্তন আনছে। সবুজ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে 5 মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদন, 8 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং 6 লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। हमारा सोलर एनर्जी का लक्ष्य 45% 2030 तक एनर्जी को करने के संदर्भ में है, जो हम पिछले लगभग 10 साल या 10-11 साल की प्रगति देखते हैं। उसमें बहुत सराहनीय काम हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुई है। বিদ্যুৎ আর সঞ্চয় দুটোই একসাথে। প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার অধীনে প্রায় 12 লক্ষ বাড়িতে সৌর ছাদ স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য 49 লক্ষ সৌর পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যার জন্য 30 থেকে 50% সরকারি ভর্তুকিও দেওয়া হচ্ছে।
উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় 36.87 কোটি এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে জ্বালানি সাশ্রয় এবং খরচ উভয়ই ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। किसानों को कुसुम योजना खुशहाल बना रही है। कुसुम योजना से पहले किसानों को भारी भरकम राशि सिंचाई के लिए बिजली बिलों पर चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब किसान कुसुम योजना का लाभ उठाकर खेतों में सौर ऊर्जा के पैनल लगवाकर सिंचाई का बिल कम कर पा रहे हैं। उस समय जो है कि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी, आए दिन लाइट जाना और फिर इंजन डीजल का खर्च, ये वो सभी चीज़ें थी। फिर मैंने कुसुम योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना PM उससे ही सोलर पंप लगवाया है। সোলার প্রায় 4 বছর হলো। সোলার লাইট লাগানো তো অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। যেমন আগে যেমন বিদ্যুতের বিলটা অনেকটাই বেশি আসতো, এখন সেটা অনেকটাই কম আসে, বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে। সেই তুলনায় আমরা এখন প্রত্যেকটা ক্লাসে অনেক কটা করে ফ্যান লাইট ব্যবহার করতে পারছি, ছাত্রছাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। और हम लोगन का बड़ी परेशानी हो रहा है। पहले ये इंजन लावे ले जा पड़ रहा है, खींचे पड़ रहा है, लोहे का पहिया रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और कभी कभी डीजल के कारण पानी नहीं लग पा रहा है टाइम से, फसल सूख जा रहा है और टाइम नहीं है। और अब जो है जब से सोलर पंप लगे हुआ है तब से जो है बहुत बड़ी सुविधा है। আগে তো এখানে লাইট ছিল না, তো লাইটটা পরে লাগাইছে, এখন লাইটটা হয়তো ভালো হয়েছে। এখন সুবিধা হয়, রাত্রিবেলায় আমাদের চলাফেরা করতে। এখন আগের থেকে এখন উন্নত হয়েছে, আগে যেরকম লাইটটা ছিল না, 2 বছর ধরে লাইট আছে। इसमें पहले जो लाइट थी, बिजली थी, कभी आंधी आ जाती थी, बरसात में तार कहीं गिर गया या कहीं फॉल्ट हो गई, तो सरकार एक अच्छी स्कीम जो चलाई है सोलर पंप सोलर, तो इसे बहुत सी गांव घर के लिए सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे हम दोपहर घर से खेत से नहीं आए, बढ़िया पंखा लगा है, बढ़िया उसके उमा बैठे हैं, खाना खा रहे हैं बेहतरीन। और सरकार की जो योजना है यह है बहुत ही अच्छी है। इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। यहाँ पर उजाला योजना के तहत गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और इन स्ट्रीट लाइटों के लगने से महिलाओं के जीवन में भी उजाला आ गया है। महिलाओं का कहना है कि जब से गांव में जगह जगह पे स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, उसके बाद से सभी जगह उजाला होता है, जिसके कारण हम सभी महिलाएं सेफ फील करते हैं। जो ये रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी है, इससे हम महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा आराम है। कहने की बात कहिए कि हम महिला सुरक्षित हैं। अभी तक ये सुविधा नहीं थी, गांव में लाइट चली जाती थी, सारे लोग अंधियारे में रहते थे, लेकिन आज जो हमारे सरकार ने कदम उठाया है, उससे हम महिलाएं बच्चियां कहीं भी आ जा सकते रहने, कोई डर नहीं है। इस लाइट से हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं, उजाला रहता है, बच्चे चाहे जैसे भी घूमें, हम लोग को कोई भी खतरा नहीं। पहले लाइट जलाते थे तब हम लोग बाहर निकलते थे, अब कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। चाहे जितनी टाइम जाओ आओ, चाहे जितना टहलो, एंजॉय करें, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। इसका हमें प्रयोग बहुत अच्छे से मिल रहा है। জৈব বৈচিত্র্য থেকে সবুজ বিপ্লব। জীব বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের সামনে একটি নতুন উদাহরণ স্থাপন করেছে। আজ বনাঞ্চল 715,343 হেক্টরে উন্নীত হয়েছে, যা কার্বন সিঙ্ক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। 2022 সালে বাঘ গণনা অনুসারে ভারতে মোট 3,682টি বাঘ রয়েছে। বিশ্বের বাঘের জনসংখ্যার 75% আজ ভারতে। প্রজেক্ট চিতা। ভারতে চিতা আনার পর কোনো জাতীয় উদ্যানে চিতা শাবকের জন্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাটে এশিয়াটিক সিংহের সংখ্যাও 411 থেকে বেড়ে 674 হয়েছে। এক পেড় মা কে নাম। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। এক পেড় মা কে নাম অভিযানের মাধ্যমে 142 কোটিরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে। দেশের 13টি সমুদ্র সৈকতে ব্লু ফ্ল্যাগ নীল পতাকা সার্টিফিকেশন পেয়েছে।
এর ফলে ভারতে এখন 85টি রামসার জলাভূমি রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী জীব বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। हम जैसे कि जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है और हम देख रहे हैं कि तापमान बहुत बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बारिश भी अनियमित हो गई है, कहीं तेज़ बारिश होती है, कहीं कम होती है। और इन सब का कारण है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वो इस दिशा में है, जो कि हमारे जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करेगा और एक जो पर्यावरण में एक बैलेंस लेकर आएगा। और जो एक वृक्ष माँ के नाम पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जो कि 5 जून एनवायरनमेंट डे के दिन 2024 में शुरू किया गया था और अभी इस साल जो है इसका दूसरा वर्जन शुरू किया गया है। और इसमें जो है जो मोदी जी का कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया जहाँ प्रकृति और ममता दोनों को कनेक्ट किया जा सके। हम लोग जानते हैं कि भारतीय जो है काफ़ी इमोशनल होते हैं और ये इमोशन अगर माँ के साथ जुड़ा है तो और ख़ास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जहाँ पर जन जन जो है इस कार्यक्रम से जुड़ के वृक्षारोपण करेंगे। পরিষ্কার পরিবেশ থেকে পরিষ্কার জীবন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও ভারত দীর্ঘ পদক্ষেপ নিয়েছে। নমামি গঙ্গে যোজনা গঙ্গাকে আবার পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্যান্য নদী পরিষ্কার করার জন্য একটি বিশাল অভিযান চালানো হচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রাম ও শহরগুলিকে খোলা মলত্যাগ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে এটি কঠিন বজ্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও বিপ্লব এনেছে। গোবর্ধন যোজনা একটি স্বচ্ছ জ্বালানি হিসেবে তার পরিচয় স্থাপন করেছে। আজ 500টিরও বেশি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। इस समय हम लोग गोला डेयरी में है और गोला डेयरी में हमारे ठीक पीछे में गोबर गैस प्लांट है और गोबर गैस प्लांट के कई फ़ायदे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बात किया जाए कि लोगों को सस्ते दरों पर गैस मिलेगी, उसके साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। गोला डेयरी में जो गोबर गैस प्लांट बने हैं, इनसे आने वाले समय में जो हमारे क्षेत्रवासियों को गैस मिलेगी वो सस्ते दामों पर मिलेगी। ये हमारे खेत जो है उनको ये फ़ायदा मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, ताकि ये गोबर जो वो होता खाद वो हमारे खेतों को, किसानों को इससे लाभ मिलेगा। गोबर से ऐसा है कि समूचा गोबर बाहर निकल रहा है, रोड पे निकल के बाहर है, नाला भर जाता है और उसके बाद सारा गोबर बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा गोबर का प्लांट गोबर से इसमें जाना चालू हो जाएगा। जब गोबर इसमें आना चालू हो जाएगा तो रोड का गंदगी भी ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों की ज़्यादा पहले परेशानी होती थी, अब तो ठीक है, शौचालय बन गया है तो पहले जंगल झाड़ी में जाना पड़ता था। पहले के जंगल झाड़ी में है जाए पड़ा है, सरकार लेटरिन बनवाई, सबका जो है बहुत आराम है। ये बहुत अच्छा है। हम लोगों को पहले बाहर जाना पड़ता था, कोई दिक्कत होती थी, अब हम लोगों को आराम है कि अंदर पानी हर एक चीज़ की सुविधा है। দুর্যোগের জন্য ত্রাণ কর্মসূচি। জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিনহাউস প্রভাব, বন্যা, খরা, ঝড়ের মতো পরিবেশের পরিবর্তিত প্রভাব বিবেচনা করে দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য 46,000 কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এনডিআরএফের 16টি ব্যাটালিয়ন, ভালো সরঞ্জাম এবং ডায়াল 112 এর মতো দ্রুত পরিষেবা আজ দেশকে দুর্যোগের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করছে। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया। पिछले 11 साल में भी एनडीआरएफ में कई बदलाव आई है, जिसमें तो सबसे महत्वपूर्ण था कि 4 नई बटालियन रेस की गई। पहले हमारे पास 12 थी, इस समय में 4 और रेस करके टोटल 16 बटालियन आज के दिन 69 प्लेसेस में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा
अभी जो हमने देखा कि अपने एक्सपीरियंस से कि हमारे जो इक्विपमेंट है उनको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है समय समय के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी मार्केट में चेंज होती रहती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है, जैसे DRDO काम करती है, उनके जो इनपुट आते हैं उसके बेसिस पे हमने CBRN के इक्विपमेंट हैं, फ्लड वाटर रेस्क्यू के इक्विपमेंट हैं, आपके अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के इक्विपमेंट हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के इक्विपमेंट है, उसकी इन्वेंट्री हमने चेंज की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हमने प्रपोज़ल भेजा था तो तुरंत इसका अप्रूवल दिया। तो अब हमारे पास आज के दिन अत्याधुनिक जो उपकरण मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हम लेकर और भी अच्छा डिज़ास्टर रिस्पांस कर सकते हैं। वेलफेयर एक्टिविटी में गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। इसमें जो रिसेंटली R2 S2 कैटेगरी है, जो अलाउंसेस में हम बात कर रहे थे कि डिज़ास्टर में जो हमारे फोर्स रेस्क्यूअर काम करती है उसका लाइफ रिस्क होता है, इसके लिए R2 S2 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने उनके लिए अलाउंस करने का डिक्लेरेशन किया था, जो कि आज हम सभी जो फील्ड में डिप्लॉयड रेस्क्यूअर्स हैं उनको मिल रहा है। और ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में फंडिंग, स्टेट की SDRF का हमको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। NDRF एकेडमी का नया कैंपस डेवलप हो रहा है जो इस साल काम हो जाएगा। अब हमने वहाँ से भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, जो नागपुर में स्थित है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। পর্যটন এবং সংরক্ষণ। পরিবেশ সংরক্ষণেও পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবর্জনা না ফেলে স্থান উপভোগ করা, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার এই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। जो ईवी गाड़ियां हैं वो पर्यावरण के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को निश्चित रूप से ये कंट्रोल करेगी और ये एकदम ज़रूरी है, क्योंकि अभी से कुछ सालों पहले जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करते थे तो लोग कहते थे कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, बट पिछले 1-2 सालों से हम इसके प्रभाव को देख रहे हैं। दुबई और सऊदी अरेबिया में तेज़ बारिश होती है और इतनी ज़्यादा बारिश की वहाँ एयरपोर्ट गिरने लगता है और सड़क पे गाड़ियाँ बहने लगती है। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि इस बार भी देखें तो गर्मी पड़ी है, लेकिन उससे बारिश भी काफ़ी आई, तेज़ हवाएं चली और सब कुछ चली। तो ये सारा जो पर्यावरण में असंतुलन है उसको धीरे धीरे हमें संतुलित करना है, जिसमें कि पेड़ लगाना, ईवी गाड़ियाँ और ये सब एक कदम है उस दिशा की ओर जिसमें कंट्रोल किया जा सकता है। আজ উত্তরাখণ্ডের মতো হিমালয় রাজ্যগুলিও সুরক্ষিত উন্নয়নের উদাহরণ হয়ে উঠছে। কেদারনাথ এবং হেমকুণ্ড সাহেবের মতো তীর্থস্থানগুলিতে রোপওয়ে প্রকল্প পরিবেশের ক্ষতি না করেই তীর্থযাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করছে। উন্নয়ন এবং পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য ভারতের নীতির মূল বিষয়। এটাই কারণ আজকের ভারতের প্রতিটি পদক্ষেপ কেবল পরিসংখ্যানের গল্প নয়, একটি সংবেদনশীল, নিবেদিত প্রাণ এবং বিশ্বব্যাপী দূরদর্শী নীতির গল্প বলছে। গ্রিন এনার্জি, কার্বন নির্গমন হ্রাস, শিল্পের জন্য পরিবেশগত নীতি, গ্রিন করিডর, স্মার্ট সিটি, আবর্জনার সঠিক ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত সুরক্ষিত করছে। বাংলার আওয়াজ,
বাঙালির আবেগ জি 24 ঘন্টা।